بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کھلنائی رفیق الاسلام سے ملے بغیر ہی پاکستان آ جائیں۔ آپ ایک مہربانی کریں کہ بینکاک میں ہمارے سفیر کو کہہ دیں کہ ہمارے اور ہمارے ہمراہیوں کے لیے یک طرفہ پاسپورٹ ہمارے وہاں پہنچنے پر بنوا دے۔ میرے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کے پاسپورٹ بنانے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ راجہ نے اطمینان کے لیے دوبارہ پوچھا، کیا سارا کارگو یعنی جواہرات محفوظ ہیں؟ میرے ہاں کہنے پر اس نے بینکاک سفارتخانے سے پاسپورٹ بنوانے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ میں نے اسے جان بوجھ کر اس کے سردار لڑکے کے ہمارے ساتھ لڑائی میں زخمی ہونے کی بات اس لیے نہیں کی کہ شفقت پدری کے باعث راجہ مجھے بے رخی اور سختی سے بات نہ کرے، کیونکہ اتنی مشکلات اور مصیبتوں سے گزر کر اور سینکڑوں انسانوں کی ہلاکت اور کئی بار موت کے منہ سے گزرنے کے بعد میری اپنی حالت ایسی تھی کہ میں ذرا سی تنقید بھی برداشت کرنے کی قوت نہ تھی۔ اگر راجہ تریدیو مجھ سے سختی سے بات کرتا تو میں اسے تو کیا اس کے بڑوں کو بھی خاطر میں نہ لاتا، لہذا میں نے اس کے بیٹے سے لڑائی کی بات کو گول کر دیا۔ اس سے بات کرنے کی فوری بعد آپریٹر نے راجہ سرفراز سے میری کال ملوائی۔ راجہ سرفراز کو جب میں نے بتایا کہ میں ڈھاکہ سے بول رہا ہوں تو اس نے بین السطور مجھے بتایا کہ یہاں حسب اختلاف کے گٹھ جوڑ سے 9 ستاروں کا متحدہ محاذ وجود میں آ چکا ہے۔ امریکہ بھی موجودہ حکومت کے خلاف ہے اور امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر وزیر اعظم بھٹو کو ایٹمی پلانٹ کی تعمیر بند نہ کرنے کی وجہ سے عبرتناک انجام کی دھمکی دے کر گیا ہے، اور حکومت ملکی اور غیر ملکی مخالفت کے باعث بڑی مشکل میں ہے بلکہ ڈاواڈول ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم جلد از جلد واپس آ جاؤ۔ میں نے راجہ سرفراز کو اپنے گاؤں کا ایڈریس بتا کر کہا کہ میری والدہ کو فوری خط لکھ کر بتائے کہ میں خیریت سے ہوں اور انشاءاللہ جلد ہی واپس پہنچ جاؤں گا۔ قارئین، یہ سن 77 کا آغاز تھا اور اسی سال کے آخر میں بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کر دیا گیا تھا۔ میں ابھی بادل گوش کے دفتر میں ہی بیٹھا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ فون سنتے ہی اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئی۔ فون پر بات ختم کر کے اس نے مجھے بتایا کہ یہاں کی انٹیلیجنس بیورو والوں کا فون تھا اور وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کے دفتر سے پاکستان میں دونوں فون، ایک وفاقی وزیر اور دوسرا وزیر اعظم ہاؤس میں کیے گئے تھے۔ وہ دونوں فون کالز کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ بادل گوش نے کہا کہ آئی بی والوں کو تو میں کچھ دے دلا کر خاموش کر دوں گا، لیکن تم اب میرے دفتر سے چلے جاؤ کیونکہ تمہارا ان سے کہیں ٹاکرا نہ ہو جائے اور آنے والے ہیں۔ بادل گوش سے رخصت ہو کر میں اور کیسر ریمینا گرین میں اصفہانی کے چیئرمین صدر اصفہانی کے گھر، وہاں سے معلوم ہوا کہ ان کا نیا دفتر موتی جھیل میں ہے۔ دفتر میں صدری کے علاوہ بڑے صاحب مرزا احمد اصفہانی سے بھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی مجھے اپنی کمپنی میں ملازم رکھا تھا اور مجھ سے بڑا مشفقانہ برتاؤ کرتے تھے۔ صدری بھی چٹاگنگ میں میری ملازمت کے دوران مجھ سے بہت خوش تھے اور میری حوصلہ افزائی کرتے رہتے تھے۔ ان کو جب میں نے کھلنا جانے کے لیے اپنی پرابلم بتائی تو بڑے صاحب کے کہنے پر صدری نے چٹاگنگ میں اپنے دفتر میں فون کر کے وہاں کے انچارج کو کہا کہ ہمارا جو سٹیمر چائے اور دوسرا سامان لے کر کھلنا جانے والا ہے، اس پر ہمارے 20 مہمان بھی جائیں گے، لہذا سٹیمر پر ان کے آرام دہ سفر کا انتظام کیا جائے۔ صدری نے مجھے بتایا کہ تارا باجی نے بھی اس سلسلے میں اسے فون کیا تھا۔ میں نے صدری سے کہا کہ کھلنا میں ہفتہ 10 روز ٹھہرنے کے بعد مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بینکاک جانا ہے، کیا وہ سمندری رستے سے ہمارے بینکاک جانے کا انتظام بھی کر سکتا ہے؟ میری بات سن کر صدری نے مجھ سے پوچھا، ہمارے ہاں ملازمت کے دوران تم ایک بالکل سیدھے سادے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے نوجوان تھے، اب اتنی بڑی تبدیلی تم میں آ چکی ہے کہ ڈھاکہ آ کر بذریعہ ہوائی جہاز یا لشکری کوچ یا فیری کے
खलना जाने के बजाय तुम चिटागंग से बहरी रास्ते से खलना और फिर खलना से बहरी रास्ते से बैंकॉक जाना चाहते हो? सीधे रास्ते से क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं या कोई ऐसी वजह है जिसे तुम पोशीदा रखना चाहते हो? मैंने सदरी को कहा, आप मेरे साबका बॉस और मौसन हैं और इसी उम्मीद पर मैं आपके पास आया हूं कि आप हर मुमकिन हद तक मेरी मदद करेंगे। मैं आपसे कुछ भी पोशीदा नहीं रखना चाहता, लेकिन ये ऐसा राज है जिसे खुफिया न रखा गया तो मैंने अहद किया हुआ है और मुझे यकीन है कि आप भी मुझे अपने अहद की पासदारी करते हुए इसे तोड़ने पर मजबूर नहीं करेंगे। सदरी ने खामोशी से मेरी बात सुनी और बोला, मैं तुम्हें अपने अहद को तोड़ने पर हरगिज़ मजबूर नहीं करूँगा। तुम्हें बैंकॉक ले जाने के लिए बेहतरीन मकाम खलना ही है, क्योंकि वहाँ से गैर ममालिक के लिए कोई कार्गो स्टीमर नहीं चलता, इसलिए वहाँ इमिग्रेशन और कस्टम के महकमे न होने के बराबर हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बैंकॉक जाने के लिए एक बड़े कार्गो स्टीमर का मैं इंतज़ाम कर दूँगा। ऐसे स्टीमर के बैंकॉक जाने के जो भी अखराजात होंगे मैं अदा करने को तैयार हूँ। मेरी ये बात सुनकर सदरी असवानी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने अभी मुझे अपना साबक बॉस और मौसन कहा है, इसलिए याद रखो कि बॉस चाहे मौजूदा हो या साबका, वो अपने मौजूदा या साबका मुलाजमीन को हमेशा कुछ देता है, इनसे लेता नहीं। सदरी की उम्मीद अफजाई बातों से मुझे बड़ा हौसला मिला। इससे रुखसत होकर हम अपने होटल में आए और अपना सफरी सामान लेकर सीधे एयरपोर्ट गए और शाम 6 बजे की फ़्लाइट से चिटागंग के लिए परवाज़ कर गए। असवानी कॉलोनी में मेरे साथी भी बिल्कुल बाखैरियत आफियत थे। मैं पहले ताराबाजी से मिला और इन्हें सदरी साहब और बड़े साहब से अपनी मुलाकात का बताया। फिर रानी से मिला और इसे कहा कि खलना जाने के लिए स्टीमर का इंतज़ाम हो गया है, लेकिन इसकी रवानगी तक हमें मज़ीद चंद रोज़ यहीं इंतज़ार करना होगा। अपने साथियों को मैंने खलना जाने का बताया। थाई बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें अपने मुल्क थाईलैंड जल्द जाने का मौका मिल रहा था। हम सब को इत्मीनान था कि हमारा आइंदा सफ़र सुकून और इत्मीनान से तय होगा। रात का खाना खाकर मैं अभी सोने की तैयारी कर रहा था कि गेस्ट हाउस के चौकीदार ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटकाया और बताया कि 2 मोटरसाइकिल सवार पुलिस अफसर गेस्ट हाउस के ड्राइंग रूम में बैठे हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं। पुलिस की यहाँ आमद और मुझसे मिलने के लिए आना मेरे लिए कतई गैर मुतवक्को था। मैंने फिर लिबास पहना और बतौर एहतियात अपना पिस्टल और रिवाल्वर जैकेट की जेबों में रख कर कैसर के कमरे में गया और इसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। मखसूस वर्दी पहने एक सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर वहां बैठे थे। मेरे इस तस्वार पर उन्होंने कहा कि गैर बांग्लादेशियों के लिए मुल्क के किसी भी शहर में जाकर पहले मुतलका स्टेशन में इन्हें अपनी आमद और जाते हुए अपनी रवानगी की इत्तला देनी लाजमी है। हमारी इत्तला के मुताबिक आप और आपके साथी कई रोज से यहाँ मुकीम हैं और आपने अभी तक पुलिस स्टेशन में अपनी आमद की इत्तला न देकर कानून की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा मुझे और मेरे साथियों को अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा। इन पुलिस अफसरान की बातों और लबो लहजे से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इन्हें मेरे और कैसर के ढाका जाते वक्त पतंगा एयरपोर्ट चिटागंग पर खुद को भारतीय IB के अफसरान होने की इत्तला भी मिल चुकी है। बांग्लादेश बनाने में भारत के फौजी किरदार और इसकी बांग्लादेश पर मजबूत गिरफ्त के बायस बांग्लादेश के क़याम के बाद भारत ने इस मुल्क के तमाम बड़े कारखानों की मशीनरी, रेलवे इंजन, बोगियां, हत्ता के रेलवे पटड़ियां भी अपने मुल्क में पहुंचा दी थीं और बांग्लादेश हुकूमत से 15 साला मुआहदे के तहत इसको फ़ौज के सिर्फ 2 या 3 डिवीज़न रखने की इजाज़त दी थी। सिविल और फ़ौज में इस का इतना अमल दखल था कि बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क के बजाय भारतीय कॉलोनी बनकर रह गया था। इसलिए पुलिस अफसरान नहायत धीमे और माजरत ख्वाह लहजे में मुझसे बात कर रहे थे। मैंने इसे तासर को बरकरार रखने के लिए दुरुस्त लहजे में इन्हें कहा कि हम भारतीय IB के अफसरान हैं और कलकत्ता और चिटागंग की बंदरगाहों पर शरपसंदों के ज़रिए गड़बड़ करने की एक साजिश की तहकीकात के सिलसिले में यहाँ आए हैं।
हमारी इत्तला के मुताबिक हमारे मुखालफिन के ग्रोह में औरतों के अलावा थाईलैंड के चंद बाशिंदे भी शामिल हैं, इसलिए हमारे साथ हमारे महकमे की औरतें और हमारे पे रोल पर हमारे थाई वर्कर भी शामिल हैं ताकि हम साजिशों तक पहुंचकर इनका कला कमा कर सकें। मैं अपने नायब के हमरा इसलिए ढाका में अपने सफारतखाने में गया था और पतंगा एयरपोर्ट पर अपनी शनाख्त भी करवाई थी। अपनी आमद और शनाख्त को छुपाने के लिए हमने असफानी कॉलोनी में रिहाइश रखी है और आप यहाँ भी आ दमके। क्या आप चाहते हैं कि आपके हमरा, मैं और हमारे हमरा आने वाले लोग थाने जाकर अपनी शनाख्त और आमद दर्ज करवा कर अपना इंतहाई खुफिया मिशन को तहस बाम कर दें? मैं अभी अपने सफारतखाने को आपकी आमद की इत्तला देकर आपके अफसर आला से आपकी बेजा मुदाखलत के लिए, आपकी सरजनश और तनज़ली के लिए कहता हूँ। मेरी बात सुनकर दोनों पुलिस अफसरान के पसीने छूट गए और वो मेरी मिन्नतें करने लगे कि इनकी इस गुस्ताखी को माफ़ करके मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाए। इन पुलिस वालों को तो मैंने ज़रा और डांट डमक कर और फिर इनकी गुस्ताखी को माफ़ करके रुखसत किया, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल कलबलाने लगा कि ये आज़ादी इस खित्ते के लोगों को इनके गरदार लीडरों के बहकावे में आने से मिली है। पाकिस्तानी होते तो वो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत के शहरी और बिला शिको शुबा आज़ाद थे, लेकिन अब धोती प्रसाद भारतीय हिंदुओं के गुलाम बनकर इनके इतने नीचे लग चुके हैं कि इनके पुलिस अफसर भी अब भी इतनी जुर्रत नहीं कि किसी सिविलियन के खुद को भारतीय आईबी का अफसरान होने का ज़बानी कहने पर इससे पासपोर्ट और वीज़ा तो दूर की बात महकमाना शनाख्ती कार्ड ही देखने का मुतालबा कर सकें। मैं अगले रोज़ आगरा आबाद रोड पर असफानी के दफ्तर गया। वहाँ का इंचार्ज भी असफानी ख़ानदान का ही एक फ़र्द था। इसने मेरी बड़ी आवभगत की और बताया कि आइंदा 6-7 रोज़ में एक कार्गो स्टीमर इनका और कोई दूसरी कंपनियों का सामान लेकर खलना जाएगा। इसी स्टीमर पर वो सदरी कहने के मुताबिक 20 मेहमानों के सफ़र का इंतज़ाम भी कर रहा है और रवानगी से 24 घंटे कबल वो हमें असफानी कॉलोनी में इत्तला भिजवा देगा। इसने मज़ीद कहा कि सदरी ने आपकी रवानगी को पोशीदा रखने के लिए मुझे ख़ास हदायत की है, लिहाजा आपको स्टीमर तक हमारे एक कार्गो ट्रक में जाना पड़ेगा। इसके तावन का शुक्रिया अदा करके मैं इससे रुखसत हुआ। कैसर और इसके साथियों को देखा देखी थाइयों में भी शिकार का शौक पैदा हो चुका था। हमारे आइंदा 4 रोज़ कॉलोनी में ही शिकार की और एहतियाती तदाबीर के इख्तियार करने की बातों पर गुजर गए और इसी दौरान मैं 2-3 बार शहर गया और असला साफ़ करने का तेल ले आया। कैसर और इसके साथियों ने तमाम असले को साफ़ किया और इसकी आयलिंग की। हम सब ज़हनी तौर पर शिकार के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैंने सारे जवाहरात और रुपया ताराबाजी के पास एक सूटकेस खरीद कर अमानतन रखवा दिए थे। मैं गुज़श्ता सफ़ात में लिख चुका हूँ कि मुत्तहिदा पाकिस्तान के तमाम शहरों में से मुझे चिटागंग सबसे ज़्यादा पसंद था। हालांकि देखने में इस शहर में कोई ख़ासी बात न थी। मच्छर बेशुमार और सड़कें टूटी फूटी थी, लेकिन आधे से ज़्यादा शहर छोटी छोटी पहाड़ियों पर बना हुआ था। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा और खुशनुमा फूलों के बाग थे। शहर के बिल्कुल करीब एक झील और 5-6 मील दूर खुला समंदर था, जहां अक्सर शहरी पिकनिक के लिए जाते थे। आगाज़े जवानी के दौरान मुझे ये शहर ऐसा भाया कि आज तक इसकी याद दिल से महव न हो सकी। मैं यहाँ अपने इन चंद दिनों के क़याम के दौरान तकरीबन हर शाम कैसर और नंबर 2 के हमरा शहर में निकल जाता। रानी और अपने हमरा ही ख़वातीन को मैंने कॉलोनी से बाहर निकलने की सख्ती से ममानत कर दी थी। सरदार के लड़के को मैंने अंग्रेज़ी रसाइल और किताबें ला दी थी और वो अपने कमरे में इन्हें पढ़ने में मुनहक रहता था। एक रोज़ कैसर और नंबर 2 ने कहा कि सारे साथी शहर में कम अज़ कम एक बार जाने की इजाज़त मांग रहे हैं।
मैंने इन्हें अपने साथ जाने की इजाज़त दी। एक शाम हम सब असवानी कंपनी के मुलाजमीन को ले जाने वाली मिनी बस में शहर घूमने के लिए गए। मैंने सबको नई मार्केटें दिखाई जहां पर सैकड़ों दुकानों में ज़रूरत का सब सामान मिलता था। वहां से हम इन्हें मस्का होटल के साथ रसगुल्ले की दुकान पर ले गया। इस दुकान के रसगुल्ले सारे चिटागंग में मशहूर थे। कारीन की दिलचस्पी के लिए इस दुकान पर पेश आया वाक़या पेशे खिदमत है। इस दुकान पर कड़ाहों में दूध भी बिकता था। मेरी मुलाजमत के दौरान चिटागंग में लाहौर के बोलू पहलवान के पट्टे आए हुए थे। वो दूध पीने के लिए इस दुकान पर गए। दुकानदार ने कढ़ाई में बाप के बर्तन से दूध निकाल कर देना चाहा तो पहलवानों ने कढ़ाई से गिलासों में दूध निकाल कर पीना शुरू कर दिया और चंद मिनटों में ही कढ़ाई खाली करके मज़ीद दूध मांगा। दुकान में बाकी ताज़ा दूध था, वो सब भी पीकर जब उन्होंने मज़ीद दूध मांगा तो दुकानदार इनकी खुराक और तनोनोश देखकर इतना घबराया कि बगैर पैसे लिए अपनी दुकान छोड़कर भाग गया और इसके मुलाजम भी दुकान से बाहर आ गए। पहलवानों ने अब रसगुल्लों पर हाथ साफ करना शुरू किया और थोड़ी ही देर में सारी दुकान में खाने पीने की कोई शय भी बाकी न रही। पहलवानों तो खा पी कर डकारें लेते चले गए और जब दूसरे रोज़ दुकानदार को पैसे देने गए तो इसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और इसकी एवज़ इन्हें यह कहकर आइंदा वो इस दुकान पर ना आए क्योंकि इनकी इस खुश खुराक की के बायस इसके लगे बंधे गाहक छूट जाएंगे। मैं और मेरे साथी रसगुल्ले खाकर फारग हुए ही थे कि मुझे मेरे असली नाम से किसी ने पुकारा। पहले तो मैंने सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन जब किसी के हाथ मेरे कंधे पर पड़े तो मैंने पलट कर देखा। मुझे फौरन याद आ गया कि ये बंगाली राय नामी हिंदू मेरी तरबेला डैम में मुलाजमत के दौरान हमारी गैर मुल्की कंपनी में स्टेट अकाउंटेंट था और कंपनी के पाकिस्तानी मुलाजमीन और खुसूसन मजदूरों की तनख्वाहों में बिलावजह कांट जांट करता और ओवर टाइम के पैसे कोई ना कोई एतराज़ बना कर काट लेता था। हर तरह से शरीफाना कोशिश के बावजूद जब वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो एक रोज़ मज़दूरों ने इसे कॉलोनी में इसकी रहायशगाह के रास्ते पर जाते हुए पकड़ लिया और इसकी खूब ठुकाई की। मैं भी मौके पर मौजूद था और मेरे इशारे पर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने भी इसे छुड़वाने की कोई कोशिश न की। दूसरे रोज़ ये मामला रिटायर ब्रिगेडियर जफ़र, जो चीफ सिक्योरिटी अफसर और पर्सनल मैनेजर थे, के सामने पेश हुआ तो मैंने और सिक्योरिटी गार्ड ने इस वाक़े के से कतई ला इल्मी बताई और कोई गवाह न होने के बायस इसे पीटने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। तब से राय नामी ये अकाउंटेंट मेरे इंतहाई खिलाफ हो गया, लेकिन इसने अपने बुग़्ज़ का कभी बरमला इजहार ना किया। सकूत डाका के बाद गैर मुल्की कंपनी के अफसर ने खुसूसी तौर पर हिफाजती इंतजामात करके इसे बांग्लादेश भेज दिया था। अब इसी राय ने मेरे शाने पर हाथ रख कर मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो किया और झूठते ही बोला, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं वही राय हूँ जिसे तरबेला में तुमने मजदूरों से पिटवाया था और गवाही देते वक्त सारे वाक़े से मुकर गए थे। ये बताओ चिटागंग में कैसे आए हो और कहाँ ठहरे हो? इसके लबो लहजे और अंदाज़े गुफ्तगू से मुझे बाखूबी अंदाज़ा हो गया कि मुझे यहाँ देखकर इसके इंतकामी जज्बात फिर से भड़क उठे हैं और ये यकीनन हमारे लिए यहाँ मुश्किलात पैदा करेगा। मैंने इसे कहा कि बेहतर होगा कि हम दुकान से बाहर जाकर बातें करें। गवाही देते वक्त मैं मजबूर था और मुझ पर ऊपर से दबाव था